Dear students, welcome back. In today's video lecture, I will explain you all about nucleic acids. What are nucleic acids? Nucleic acids are a very important class of biomolecules. They are very important class of biomolecules, which are found in nuclei of. They are found in nuclei of all living cells. So they are important class of biomolecules which are found in nuclei of all living cells in the form of nucleoproteins. In fact, nucleic acids are biopolymers. They are nucleic acids को अगर आप केमिकली देखें, they are biopolymers of nucleotides. They are biopolymers of what? Nucleotides. And hence, they are also called as polynucleotides. Nucleic acids are also called as nucleic acids are also called as what? Polynucleotides, because they are biopolymers of nucleotides. अब क्वेश्चन राइज होता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 पार्ट्स की बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ 3 parts. What are these 3 parts? One is sugar molecule, second is nitrogenous base, and third is phosphate group. So हम कह सकते कि न्यूक्लियोटाइड तीन डिफरेंट केमिकल एंटिटी के कॉम्बिनेशन से बनी होती है. वन इज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजीनियस बेस, and third is phosphate group. अब इसमें बच्चे याद रखें, जो इसमें शुगर है, इट इज ए पेंटो शुगर. And in case of nucleic acids, we have 2 type of pentose sugars. One is ribose and other is deoxyribose. So 2 type of pentose sugars are present in nucleic acids, and hence nucleotides are of 2 types. बच्चे न्यूक्लियोटाइड भी 2 टाइप्स की हैं, depending upon type of sugar which they contain. If they contain ribose sugar, it is called ribonucleotide. And if it contain deoxyribose sugar, it is called deoxyribonucleotide. ठीक है बच्चे. अब हमारे पास 2 टाइप की न्यूक्लियोटाइड्स हैं. इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी 2 टाइप की होंगी. one polynucleotide which is made up of ribonucleotide, and other polynucleotide which is made up of deoxyribonucleotide.
Hence, we have two type of nucleic acids. Depending upon type of nucleotide. Depending upon type of nucleotide. न्यूक्लियोटाइड की टाइप पे डिपेंड करेगा. वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. वन इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड RNA and second is deoxyribonucleotide, that is DNA. अंडरस्टूड है बच्चे. RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड मतलब it is a polymer of ribonucleotide. DNA deoxyribose nucleotide मतलब it is a polymer of deoxyribonucleotide. DNA deoxyribose nucleic acid, so it is a polymer of what? Deoxyribonucleotide. This is very important. तो आपने यहां तक देखा कि we have two type of nucleic acids depending upon the type of what? Nucleotide. अब हमें पता चल चुका है, now we know that कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. अगर हमने न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करना हो, वी वांट टू रिप्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. शुगर के साथ जुड़ा होता है बच्चे बेस, या बेस के साथ आप कह सकते हैं शुगर जुड़ी होती है. एंड शुगर इज देन बॉन्डेड टू phosphoric acid unit. So this is the representation for what? Nucleotide. ये न्यूक्लियोटाइड की बच्चे रिप्रेजेंटेशन. Depending upon type of sugar, we will have two type of nucleotide. वो मैंने पहले बता दिया. As we have said that nucleic acids are polymers of nucleotides. न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर्स हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के. ठीक है. तो फिर अगर हमें न्यूक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करना बच्चे? देखिए, शुगर, ये बेस आपका आ गया, बेस यूनिट. ये आपका आ गया फास्फोरिक एसिड. एक न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये बच्चे दूसरा आ गया. ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है. शुगर, बेस, फास्फोरिक एसिड. इसी तरह एक और लिख लेते हैं, शुगर, बेस, फास्फोरिक एसिड यूनिट. ये बच्चे, तो कॉम्बिनेशन इनका कैसे हुआ है? शुगर के 5वें कार्बन का जो OH है, जो मैंने यहां शो नहीं किया है, और फास्फोरिक एसिड का OH यूनिट, इनके थ्रू ये कंबाइन किए हैं विद लॉस ऑफ वाटर. यानी कि यहां पे जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी थ्रू ऑक्सीजन. यहां पे थ्रू ऑक्सीजन. इसी तरह से बच्चे इसकी नेक्स्ट शुगर से थ्रू ऑक्सीजन. हमने यहां शो नहीं ना किया. 5वें कार्बन का जो 5th कार्बन, शुगर का जो 5th कार्बन OH है, और जो फास्फोरिक एसिड यूनिट का जो OH है, उनके बीच में कॉम्बिनेशन हुआ विद लॉस ऑफ वाटर, और यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है थ्रू ऑक्सीजन. इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू करेगा इस साइड, और इसी तरह से बच्चे ये भी आगे कंटिन्यू करेगा इस साइड, and so on. So this is the representation for what? Structural representation for what? Nucleic acids. जहां पे शुगर बच्चे देखें और फास्फोरिक एसिड यूनिट, ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स. शुगर और ये फास्फोरिक एसिड यूनिट. बेस बाहर, बेस इज आउट ऑफ. ठीक है बच्चे. उसके बाद आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA एंड RNA. मैंने पहले ही कहा, अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि चाहे DNA है चाहे RNA है, both are made up of 3 chemical units.
DNA as well as RNA, they are made up of chemical composition. ये हम बता चुके हैं. केमिकल कंपोजिशन आपसे कोई पूछ ले न्यूक्लिक एसिड्स की, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ वन यूनिट फास्फोरिक एसिड यूनिट. एक इनमें फास्फोरिक एसिड यूनिट होता है, एक इनमें मैंने बताया शुगर होती है, और एक इनमें बच्चे नाइट्रोजीनियस बेस होता है. बेस, ठीक है. शुगर टू टाइप्स के पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर है, और अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है. नाइट्रोजीनियस बेस बच्चे फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस आर फाउंड. अगर हम शुगर की बात करें, लेट अस टॉक ऑफ शुगर. फास्फोरिक एसिड यूनिट हमने स्ट्रक्चर ऊपर भी दिखा दिया आपको. इफ वी टॉक ऑफ शुगर, अगर हम शुगर की बात करें तो जो शुगर का फार्मूला है उसका अगर हमने हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रा करना हो, हावर्थ प्रोजेक्शन. एक चीज और बताता चलो यहाँ पे, कि इन केस ऑफ आरएनए एज वेल एज डीएनए, बोथ द शुगर आर बीटा फॉर्म में है, चाहे वो राइबोज है चाहे वो डीऑक्सी राइबोज, और पेंटो शुगर है. तो दोनों का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा करके आपको दिखा देता हूं. पहले हम ड्रा कर देते हैं बच्चे राइबोज. क्योंकि बीटा है तो फर्स्ट कार्बन पे जो ओ एच वो अबव द प्लेन होगा. बीटा में अबव द प्लेन होता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे होता है. फर्स्ट कार्बन ओ एच बीटा लेफ्ट साइड वाला अबव द प्लेन होता है. और बाकी आपने अगर इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, ये स्ट्रक्चर होता है राइबो शुगर का. इसमें जितने भी ओ एच हैं दे आर ऑन राइट साइड. ये देखिए, इसने तो यहाँ पे मुझे रिंग बना लेनी. ये वाला ऑक्सीजन आ गया, ये वाला. इनको देखिए, दो को ध्यान, राइट साइड वाले OH कहाँ होंगे, बिलो द प्लेन. और टर्मिनल CH2OH कहाँ होगा, अबव द प्लेन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी राइबो. बीटा डी राइबो. अब इसमें और इसमें क्या फर्क आएगा, ये है बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोस. 2-डीऑक्सीराइबोस यानी कि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन कम हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है. तो HOH सेम रहेगा. सेकंड कार्बन पे यहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ देखिए OH है, यहाँ H लग जाएगा. H मतलब एक ऑक्सीजन कम है इसमें. इतना ही फर्क है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज. रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम. OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, HCH2OH. ये है पांचवा कार्बन. दिस इज 1 2 3 4 5 जिसकी मैं बात कर रहा था. फिफ्थ कार्बन होगा, ये है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ये स्ट्रक्चर था बच्चे किसका, शुगर्स का. दैट इज राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज. अब बात करते हैं बच्चे नाइट्रोजीनियस बेसिस. नाउ लेट अस टॉक ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस. The four nitrogenous bases present in DNA are adenine, guanine, cytosine, thiamine. एडिनिन, जो चार नाइट्रोजीनियस बेसिस डीएनए में पाए जाते हैं, दे आर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन. यहां पे आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि ये जो एडिनिन और गुआनिन है, दे आर प्यूरिन बेसिस. बेसिक स्ट्रक्चर इनका प्यूरिन का है, फ्रेमवर्क. और जो साइटोसिन थायामीन है, ये आर पिरिमिडिन बेसिस. पिरिमिडिन बेसिस. इन केस ऑफ आरएनए, अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में भी आपको एडिनिन गुआनिन मिलेंगे. एडिनिन एंड गुआनिन एज प्यूरिन बेसिस. साइटोसिन भी मिलेगा,
और थायामीन की जगह मिलेगा बच्चे यूरासिल। दिस इज द डिफरेंस। साइटोसिन एंड यूरासिल, दीज आर pyrimidine bases. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डीएनए एंड आरएनए। एक डिफरेंस आ गया शुगर का, फास्फोरिक एसिड यूनिट दोनों में सेम होगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस आ गया शुगर का, एक डिफरेंस बेस का भी है। दोनों में चार चार बेसिस नाइट्रोजिनिस पाए जाते हैं, बट इन वन वी हैव एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायामीन, इन द अदर वी हैव एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल। थायामीन get replaced by uracil in case of RNA. This is very important. And all these are nitrogenous bases. चारों के चारों क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे ए से, गुआनिन को जी से सिंबल, साइटोसिन को सी से, थायामीन को टी से और यूरासिल को यू से। हमारे काम आएगा बाद में जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ना। किसका स्ट्रक्चर पढ़ना हमने, डीएनए का। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बच्चे एडेनिन का, एडेनिन का। नाइट्रोजन हेयर, नाइट्रोजन हेयर, नाइट्रोजन हेयर एंड नाइट्रोजन हेयर। बेसिक फ्रेमवर्क प्यूरिन का है, ये आ गया बेसिक फ्रेमवर्क प्यूरिन का, बेसिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इसके अलावा एडिनिन में, प्यूरिन आ गया, एडिनिन में और क्या है, देयर इज ए अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हेयर, और एन के ऊपर यहाँ एच तो होना ही है, बैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। इसी तरह से अगर हम एडिनिन गुआनिन की बात करें, हमने कहा एडिनिन गुआनिन बोथ आर प्यूरिन बेसिस, तो बेसिक फ्रेमवर्क हम चेंज नहीं कर सकते, वो यही रहेगा, ये वाला रिंग सिस्टम। यहाँ पे नाइट्रोजन होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन होगी, अंडरस्टूड है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगी, ऐसे यहाँ पे है, देखिए 1 2 3 4, बेसिक फ्रेमवर्क वी कैन नॉट चेंज। उसके बाद बॉन्डिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। नाइट्रोजन की ये बैलेंसी कम हो रही है, वो एच से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे, बेसिक फ्रेमवर्क में जो डिफरेंस आया। ठीक है ना बच्चे, इस एंड पे एच आना ही आना, इसकी भी बैलेंसी हमने सेटिस्फाई करनी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ही होगा। हियर देयर इज डबल बॉन्ड, यहाँ है ना, देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे फर्क आया है। और जो NH2 यहाँ पे लगा है वो कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। दिस इज एडेनिन गुआनिन, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं बच्चे अदर 3 बेस स्ट्रक्चर्स। साइटोसिन, साइटोसिन का बच्चे ये स्ट्रक्चर है। हमने कहा पिरिमिडीन बेसिस है ये, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन का बेसिक फ्रेमवर्क ये होता है, दिस इज पिरिमिडीन बेसिक फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इसमें ही चेंज आया होगा कुछ ना कुछ, तो चेंज कहां पे है, मैं फिर से स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। बेसिक फ्रेमवर्क आ गया ये एन, एक चेंज आया कि इट हैज ए कार्बोनाइल ग्रुप हियर, दूसरा है यहाँ पे NH2 है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है बच्चे, एक डबल बॉन्ड ये, तीसरा यहाँ आना था, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ कार्बोनाइल है। इस एन की बैलेंसी को सेटिस्फाई किया है किससे, एच से। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ व्हाट, साइटोसिन। ये दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन इज फाउंड इन बोथ डीएनए एज वेल एज आरएनए। अब डीएनए में थायामीन है और आरएनए में यूरासिल है, तो पहले थायामीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, 2 एन आने आने, पिरिमिडीन बेसिक फ्रेमवर्क, इसमें भी यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है। ये मैं किसका स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहा हूँ बच्चे, अब थायामीन, यहाँ कार्बोनाइल है, उसके बाद यहाँ कार्बोनाइल है, 2 जगह कार्बोनाइल आ गया, और यहाँ चूंकि यहाँ भी कार्बोनाइल आ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ भी नहीं आ सकता। यहाँ कार्बोनाइल आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ भी एक एच डालना पड़ेगा एन की बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ भी डालना पड़ेगा। नाइट्रोजन की बैलेंस 3 होती है। यहाँ डबल बॉन्ड अपनी जगह इंटैक्ट रहा ये वाला, और यहाँ एक मिथाइल। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, थायामीन। थायामीन के बाद बच्चे आता है फिर यूरासिल का। लेट अस हैव स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। बेसिक फ्रेमवर्क वी कैन नॉट चेंज, यहाँ आने आने 2 नाइट्रोजन। इस चीज को याद रखना, बेसिक फ्रेमवर्क पिरिमिडीन का है। बेसिक फ्रेमवर्क किसका है, पिरिमिडीन का। हम किसका स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहे हैं, यूरासिल का। यूरासिल में क्या है बच्चे, यहाँ कार्बोनाइल,
यहां भी कार्बोनाइल, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, एन के ऊपर एच, एन के ऊपर एच। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। यूरासिल और थायामीन में क्या फर्क है मिथाइल का? यूरासिल इज फाउंड इन आरएनए ओनली, it is found in DNA only, and it is found in both RNA and DNA, ये दोनों में पाया जाता है। So this was the structure of what? 4 nitrogenous bases। ये स्ट्रक्चर था किसका बच्चे? 4 nitrogenous basic। बाद में बात आती है किसकी? फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप ही बैकबोन है बच्चे। इसके थ्रू ही आपने देखा कि शुगर आपस में लिंक होते हैं, शुगर, है ना। फास्फोरिक एसिड यूनिट जो है, दैट इज द basic unit which joins the sugar and we get polymer, sugar इधर भी sugar, ये फास्फोरिक एसिड यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकेजेस इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में बांधने वाला कौन है बच्चे? फास्फोरिक एसिड। ये है बच्चे फास्फेट ग्रुप। तो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट वी है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। कल को आपको शॉर्ट नोट आ सकता, व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो पहले बात करते हैं, पहले इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं। लेट इट, व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स? हमने कहा कि 3 कंपोनेंट्स हैं मेन इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स में, नाइट्रोजनियस बेस, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड यूनिट। तो molecule in which one of the nitrogenous base is bonded to sugar molecule is called nucleoside। तो न्यूक्लियोसाइड हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड is combination of a nitrogenous base plus साथ में कौन है बच्चे? शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ शुगर, शुगर कौन सी है, राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज। वी हैव 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, 2 टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड्स हैं बच्चे, राइबोज न्यूक्लियोसाइड्स एंड सेकंड इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो शुगर, जो बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस जो बेस है, वो शुगर के साथ कहां पे लिंक्ड है? शुगर और बेस के बीच में जो लिंकिंग है वो कहां पे है? तो बच्चे मैंने आपको शुगर का स्ट्रक्चर बताया था, ये मैंने कहा था दोनों शुगर बीटा डी है, चाहे वो कौन से वाली शुगर है बच्चे, राइबोज है, चाहे वो डीऑक्सी राइबोज। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिया? राइबोज का। तो जो इसका C1OH है, C1OH बच्चे यहां पे प्रेजेंट है बेस, इस पॉइंट पे बेस इज प्रेजेंट एज C1 ऑफ द शुगर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, बेस इज प्रेजेंट हियर। तो ये है बच्चे स्ट्रक्चर किसका? न्यूक्लियोसाइड का। कौन सी न्यूक्लियोसाइड बना दी मैंने? ये राइबोज न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन कम कर दूं, इट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होगी बच्चे? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। अब बात करते हैं बच्चे न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड में ऑल द 3 यूनिट्स होंगे। न्यूक्लियोटाइड, all the 3 units, nucleotide contain all the 3 units। कौन से यूनिट्स? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में तीनों यूनिट होंगे, दैट इज बेस, शुगर एंड फास्फोरिक एसिड यूनिट, फास्फोरिक एसिड यूनिट। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड भी 2 टाइप के होंगे डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ बेस। अगर सॉरी हो गया,
डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ शुगर। अगर शुगर राइबोज है तो न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये पहले ही बता चुका मैं आपको। और अगर शुगर डीऑक्सीराइबो है तो न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो। ठीक है बच्चे। अब अगर मुझे कहा जाए कि राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करो, है ना, राइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करो। ये मैं स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ड्रा करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए को ड्रा करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं बच्चे। हमने इसमें यही दिखाना होता है कि बॉन्डिंग कहां पे हुई है। ठीक है, वेयर द बॉन्डिंग हैज अकर्ड। ठीक है बच्चे, दिस वी हैव टू शो, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं किसका बच्चे, लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया बच्चे, HOH HCH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। अब हमें इसमें ऐड करना है फास्फोरिक एसिड यूनिट। वो कहां पे अटैच है, पांचवें कार्बन C5OH, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अटैच कर दो। O P डबल बॉन्ड O OH OH। so this gives us the structure of what, ये हमें किसका स्ट्रक्चर मिल गया, this gives us the structure of deoxyribose nucleotide। this is the structure of deoxyribose nucleotide। और अगर आप कहें कि हमें राइबोज न्यूक्लियोटाइड का भी स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो कोई बात नहीं, ये हमने ड्रा किया हुआ है बच्चे राइबोज न्यूक्लियोसाइड, बेस और शुगर। इसमें फास्फोरिक एसिड यूनिट को ऐड करना और कुछ नहीं करना। और फास्फोरिक एसिड यूनिट कहाँ अटैच होता है, मैंने कहा आपको, इट इज प्रेजेंट एट C5, पांचवें, 1 2 3 4 एंड 5, पांचवें कार्बन के OH से जुड़ा होता है। 2 ऑक्सीजन लिंकेज, यहाँ पे ऑक्सीजन का लिंकेज, E का OH और कार्बन का OH, लॉस ऑफ वाटर, और बीच में ऑक्सीजन का लिंक रह गया ना, OH डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये है बच्चे। अब जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगी, चाहे वो राइबोज है चाहे वो डीऑक्सीराइबोज, राइबोज न्यूक्लियोटाइड, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, जब ये आपस में जुड़ेंगी टू गिव ए पॉलीमर, वी विल गेट डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगी तो मिल जाएगा हमें क्या बच्चे, डीएनए। राइबोज न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, आरएनए। आज हम अपना लेक्चर यहां तक ही सीमित रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थैंक यू वेरी मच।